अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजश्री शाह ने बुध मंडल मुस्तकिल का अचानक दौरा करते हुए हल्के बुध में नए सब रजिस्टर ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से मुतालिक तमाम इंतजामात का जायजा लिया। बाद बुध एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की, मरीजों से वहां की तिब्बी खिदमात के बारे में पूछा और डॉक्टरों और अमले को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने का मशवरा दिया। बाद में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स विद्यालय का दौरा किया, बच्चों से वहां के खाने पीने की सहूलियात के बारे में पूछा। उन्होंने मौसमी बीमारियों के पेश नजर इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने और गिर्द व नवाह में पानी जमा न होने देने का मशवरा दिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर शेमाला देवी और जिले सतह और मंडल सतह के अहदेदार मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు బోత్ మండల్లో కొన్ని అంశాల పైన ఈరోజు విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ కానీ, తర్వాత సిహెచ్సి బోత్ కానీ, తర్వాత కేజీబీవి కానీ, మోడల్ స్కూల్ కానీ ఇది విజిట్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా సిహెచ్సి బోత్కి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ డాక్టర్స్ మంచి సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి మాకు తెలవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా అక్కడ చూస్తే ఇప్పటివరకు ఈ డెంగ్యూ కేసు కానీ, మలేరియా కేసు కానీ ఏమీ రాలేదు। అంటే బోత్ ఈ హాస్పిటల్కి వస్తే చూస్తే అక్కడ సుమారుగా అంటే ఫీవర్ కేసెస్ ఒక 2500 అట్లా ఈ మంత్లో ఫీవర్ కేసెస్ రావడం జరిగింది। టోటల్ ఓపీ 6000 పైన ఓపీ కూడా రావడం జరిగింది। ఇప్పుడు అక్కడ ఇన్ పేషెంట్స్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। కానీ ఇక్కడ బోత్ అంటే గ్రామ పంచాయతీలో చూస్తే నిన్న ఒక ట్రైబల్ ఈ స్కూల్లో ఒక డెంగ్యూ కేసు రావడం జరిగింది। వాటికి సంబంధించిన ఈరోజు అక్కడ క్యాంప్ కూడా పెట్టి ప్రతి ఒక్క పిల్లలది కూడా స్క్రీనింగ్ చేయడం జరిగింది। మా రిక్వెస్ట్ అందరితో మేజర్గా ఇప్పుడు డెంగ్యూ కేసు ఎట్లా వస్తున్నాయి అంటే అక్కడ ఇంట్లో ఈ నీళ్ళు నిల్వ ఉంటే దాంట్లో మరి అక్కడ కూలర్ కావచ్చు, లేదు కుండీలు కావచ్చు, లేదు టైర్లు కావచ్చు, అట్లా ఎక్కడైనా నీళ్ళు ఆగితే, మంచి నీళ్ళు ఆగితే దాంట్లో మళ్ళీ ఈ దోమల గుడ్లు పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో ఈ వచ్చిన దోమలతో అక్కడ కుడితే మళ్ళీ డెంగ్యూ కేసు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి నేను కూడా మా అధికారులు అందరికీ కూడా ప్రతిరోజు అట్లా డ్రై డే యాక్టివిటీస్ పాటించుకోవాలి। కానీ మేజర్గా ఇంటి యజమాను వారి ఇంటిలో ఈ మంచి నీళ్ళు నిల్వకుంటే చూసుకుంటే మరి ఆటోమేటిక్గా ఈ దోమలు పెరగకుండా దోమలు కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి దీంతో ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఈ డెంగ్యూ కేసు వచ్చింది అంటే ఒక 10 రోజు 15 రోజులు అట్లానే చాలా మరి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన ఉంటుంది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ ఇంటిలో ఈ మంచిని నిలవకుండా దయచేసి చూసుకోవాలి। దీంతోపాటు ఇక్కడ కేజీబీవీలో కూడా మోడల్ స్కూల్లో కూడా ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ పిల్లలకి మంచి చెప్తున్నారు, నాణ్యతమైన భోజనం కూడా ఇస్తున్నారు। వారికి సంబంధించిన కూడా కొన్ని సమస్యలు టాయిలెట్స్ విషయం కానీ, గ్రావెల్ విషయం కానీ కూడా చెప్పడం జరిగింది। కొన్ని వేరే ఎస్డిఎఫ్ నిధులు కానీ తర్వాత మా దగ్గర ఉన్న నిధులు కూడా శాంక్షన్ చేసుకుని తొందరగా కంప్లీట్ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। థ్యాంక్ యూ। तानाका में डिप्टी मेयर के कैंप ऑफिस में डिप्टी मेयर ने टीटीयूसी के रियासती सदर मोटे शोभन रेड्डी के साथ महकमे आपाशी और रेवेन्यू से मुतल्लिक अहदेदारों के साथ जायजा लिया और कहा कि तजावुजात पर गैर कानूनी तामीरात की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा। तालाबों में सैलाबी पानी नहीं आता। उन्होंने कहा कि नाले में सैलाबी पानी बहने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने नाला तालाब में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत दी। हाइड्रा को इन लोगों के बारे में मतला करें जिन्होंने तामीरात की हैं और उनके साथ ताउन करने का हुक्म दिया। इस प्रोग्राम में मैरटपल्ली तहसीलदार भीमैया गौड़, सर्कल एसीपी नवाज राव, रेवेन्यू इंस्पेक्टर टीपीएस प्रकाश व दीगर मौजूद थे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने मुल्क में फिर एक्सटी गोलियां जब्त की हैं जिन्हें खाने की आड़ में जाली तौर पर तैयार और फरोख्त किया जा रहा था। मसनूआत ग़िज़ाई अज्जा अलहदा तक़रीब में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने कुछ गोलियां जब्त की हैं। गुमराहकुन इश्तिहारात की वजह से अद्वियात कोल सरप्लस सस्पेंशन एक एलोपैथिक दवा जिसका दावा पेप्टिक अल्सर के इलाज के लिए है और भिरंगा राजा चर्नम एक आयुर्वेदिक दवा जो कि बुखार का इलाज करने का दावा कर रही। एक अलग वाक़े में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने एक मेडिकल पर क्लिनिक पर छापा मारा है और क्लिनिक में जब्त शुदा मंशियात जगतगिरी गुट्टा खतबुल्लापुर गांव मिर्चल मलकाजगिरी जिले में फरोख्त के लिए रखी गई थी।
वाइस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि जहरीला बुखार रियासत को हिला कर रख दिया है, अवाम परेशान है। रियासत डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से परेशान है। अस्पताल मुतासरीन से भरा पड़ा है। सरकारी अस्पतालों में एक ही बिस्तर पर 2 से 3 मरीजों के इलाज की हालत जार देखी जा रही। रियासत में सरकारी तिब्बी सूरत हाल अबतर हो चुकी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस गांव या वार्ड को देख रहे हैं, आप बुखार के साथ बिस्तर पर पड़े लोगों के मनाजिर देख सकते हैं। सीपीआई, सीपीआईएम और बाएं बाजू की मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने वीडियो तहरीक के शहीदों एस राम कृष्णा, जे विष्णुवर्धन, वी बालस्वामी को खराज अक़ीदत पेश किया है। बाएं बाजू की जमातों ने खबरदार किया है कि कोई भी हुकूमत जो गैर मकबूल हुकूमत करेगी अवामी गुस्से का सामना करेगी। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोनेनेनी सांबशिवा राव, सीपीआई नेशनल काउंसिल के अरकान पुल्ला वेंकट, सीपीआई के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी तक्कलपल्ली श्रीनिवास, एन बालामल्लेश, रियासती सेक्रेटरीट के अरकान ईटी नरसिम्हा ने शहदा के स्तूपा पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। हल्के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज कोलन हनुमंत रेड्डी ने दोंडिगल बल्दिया बुर्रमपेट के पुलिस नरेंद्र रेड्डी की बेटी की शादी में शिरकत की। इस तकरीब में एनएमसी कांग्रेस के सदर कोलन राजशेखर रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर कायदीन सद्दानोला संजीवा रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। तालुका मधुल एमएलए पवार रामाराव पटेल की 70वीं यौम पैदाइश तकरीब भैंसा में अफराद खानदान और बीजेपी कायदीन इंतहाई जोश व खरोश से मनाते हुए एसएस कॉटन फैक्ट्री में केक काटा गया। तकरीबन 100 नौजवान बशमुल खवातीन ने रज़ाकाराना तौर पर खून का हथिया दिया। भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में अफराद खानदान ने तकरीबन 12 लाख मालियत का सामान अतिया किया, जबकि हिंदू वाहिनी के जिले सदर रामू के बशमुल 70 नौजवानों ने एमएलए पवार रामाराव पटेल की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है और एमएलए रामाराव पटेल के यही ख्वाहों ने क्रेन मशीन के जरिए फूलों की माला पहनाई और स्कूली तलबा में रामाराव पटेल मुशाबहा चेहरे के मास्क पहनकर मुबारकबाद दी। इन तमाम तकरीबात में एमएलए रामाराव पटेल के फर्जंदान जिनमें डॉक्टर सतीश पवार, संदीप पवार के अलावा भाई दत्तूराम पटेल और दीगर अफराद खानदान मौजूद थे। గవర్నమెంట్ డబ్బు ఇచ్చే సౌకర్యాలు లేవు. ఎవరికన్నా ఏ దాత కూడా అడుగుతా, వాడి పేరు పెడతా, వాడికి శాలతో సత్కరిస్తా, ఆ దాతకు నేను ధన్యవాదాలు చెప్తా. కానీ దుష్ట శక్తులు కొంచెం బాగానే ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే ఏ పని కూడా కావాలంటే దానికి అర్థం కావాలి. మన దేశంలోనే అట్లా, మన దేశం ఉన్నట్లోనే అట్లా ఉంటుంది. మంచి పనికి ఎవరు మంచి ఇస్తారు, దాతలు తీసుకుంటాడు, డబ్బులు తీసుకుంటాడు, లంచం తీసుకుంటాడు, పైసలు తీసుకుంటాడు. నాకు భగవంతుడు ఏం చక్క ఇయ్యలే, ఇలా బంగారం ప్రతి నాకు డాక్టర్ ఉన్నాడు. ఇలా ఎందరో బీదవాళ్ళకు డైలీ 10, 11, 12 ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు. బీదవాళ్ళకు సాయం చేస్తున్నాడు. నా చిన్న కుమారుడు బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. నాకు డబ్బులు ఆశ లేదు. కానీ దుష్ట శక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రచారం చేస్తారు, డబ్బులు తీసుకుంటాడు. డబ్బులు తీసుకుంటా, ఎవరైనా ఇస్తే డబ్బులు తీసుకుంటా, కానీ హాస్పిటల్ పేర్లు తీసుకొని హాస్పిటల్లోనే ఆయన పేరు డొనేషన్ రాస్తాను. ఆయన అటువంటి దుష్ట ప్రచారాలకు భగవంతుడు తీసుకుంటాడు. మాకు ఏం కాదు, మేము స్వచ్ఛం మంచు నిర్మలంతో పనిచేస్తున్నాం. మంచు నిర్మలం పని కూడా ముంగట పనిచేస్తామని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం మిత్రులారా. అదేవిధంగా విద్యా గురించి కానీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కానీ ఖచ్చితంగా 5 गांव के रिहायशियों की शिकायत पर संभल जिले के तहसील चंदूसी, पाथरा, बदायूं, मुरादाबाद हाईवे पर एसडीएम चंदूसी ने गांव के लोगों की शिकायत पर गांव के सरबराह के नुमाइंदे और अकाउंटेंट की सरजनिश की है। एसडीएम ने कहा है कि आप सबकी मिली भगत से मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये मामला यूपी के संभल जिले के मुरादाबाद हाईवे तहसील चंदूसी, पाथरा, बदायूं में सामने आया, जहां प्रॉपर्टी डीलर ने गांव के सरबराह और तहसील की मदद से मुलाजमीन के उनकी जायदाद के सामने पड़े खाद के गढ़ों को हटाकर उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में शामिल कर दिया, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने एसडीएम चंदूसी से की। एसडीएम चंदूसी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। सर, ग्राम पथरा चंदूसी तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने सरकारी खाद के गड्ढों को अपनी भूमि में मिला लिया, अब उस पर प्लॉटिंग हो रही है। क्या संज्ञान मामला है, तो क्या कार्रवाई है?
जैसे ही संज्ञान में आया मैंने एसडीएम साहब को वहाँ पे भेजा, तो उन गड्ढों को खाली करा लिया है और तारकशी भी हो गई है। हम वहाँ की भूमि का एक्सचेंज करा करके जो खाद के गड्ढे हैं वो दूसरी जगह प्रस्तावित करेंगे। वो भूमि बहुत ही मूल्यवान है, हाईवे के किनारे पर है, लगभग 2.25 बीघा की है। तो जो भी सरकारी कार्यालय भविष्य में आएगा उसके ऊपर हम प्रस्तावित करने का विचार कर रहे हैं ताकि वो भूमि सुरक्षित रहे। प्रॉपर्टी डीलर ने उसको अपनी निजी संपत्ति में मिला लिया है, उन पर कोई हमने 2 चीज़ें बताई है। एक तो जिसने अपने निजी संपत्ति में मिलाया था उस पर एफआईआर कराई जाए, और यदि भू माफिया की कार्रवाई हो सकती है तो अच्छे से वो भी करवाएंगे, वो मेरी बातचीत चल रही है। और दूसरा स्पष्टीकरण भी हमने लेखपाल का लिया है, और ग्राम प्रधान के लिए भी मैंने बोला है कि इन लोगों की मिली भगत से ये हुआ है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और एमएलए नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में मलेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदूर के हमरा जेएचएमसी ऑफिस खैरताबाद का दौरा किया और मलेपल्ली डिवीजन के ज़िला तरक्याती कामों के सिलसिले में ई लाल सिंह के साथ मीटिंग की। आइंदा गणेश त्यौहार की तकरीबात की तैयारी के सिलसिले में साइबराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश मोहंतिया आईपीएस ने साइबराबाद एसपी ऑफिस के मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में एक आला सतह बैन महकमे जाती कोऑर्डिनेशन मीटिंग तलब की। मीटिंग में मिर्चल मलकाजगिरी जिले कलेक्टर गौतम पोत्रो आईएएस, रंगारेड्डी एडिशनल कलेक्टर प्रतिमा सिंह आईएएस, जेडीसीपी ट्रैफिक साइबराबाद डी जोएल डेविस आईपीएस, एडिशनल डीसी एसपी एएसपी और मुख्तलिफ सरकारी महकमों जैसे जेएचएमसी, आरएनबी, एचएमडब्ल्यूएस और एसबी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए सीपी ने रियासत भर में मनाए जाने वाले सबसे बड़े त्योहारों में से एक के तौर पर गणेश त्यौहार की अहमियत पर जोर दिया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।